Hello everyone. Today we are going to start from the topic that is the nature of employment in India. So the nature of employment in India is multifaceted. मतलब इसके अलग-अलग कई पहलू हैं. Some get employment throughout the year. कुछ लोगों को पूरा साल employment मिलती है. While others get it only for a few months in a year. तो कुछ लोगों को पूरा साल employment मिलती है, कुछ लोगों को बस साल के कुछ महीनों में ही काम मिलता है. Hence, the economic planning in India it aims to utilize the available resources in a manner which would maximize the rate of growth with optimal employment generation. Now, the features of employment in India. तो कौन-कौन से features हैं? Informalization, ruralization, musculization, and casualization. So let us now discuss them. The first one is ruralization. It says that more than half of the India's workforce includes the rural workers, with more than half of them being men. तो रूरलाइजेशन का क्या मतलब है कि ज़्यादा लोग जो हैं वो रूरल वर्कर्स हैं. तो मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स, इंडिया की वर्कफोर्स जो है वो हाफ से ज़्यादा उसमें रूरल वर्कर्स आते हैं और उसमें भी हाफ से ज़्यादा जो है वो मेन है. तो देयर इज रूरलाइजेशन एज वेल एज मस्कुलिनाइजेशन of the workforce in India. तो रूरलाइजेशन के बाद देयर इज इनफॉर्मलाइजेशन. According to International Labour Organization, 81% of labor is working in informal sector and only 6.5% are in the formal sector. तो जो इनफॉर्मल सेक्टर है वही है मेजॉरिटी पार्ट इंडिया की इकोनॉमी का. वाइल जो फॉर्मल सेक्टर है वो बहुत ही कम है. लेस देन 10% इंडिया की जो इकोनॉमी है वो फॉर्मल सेक्टर में है. वाइल अराउंड 90% ऑलमोस्ट नाउ इज इन इनफॉर्मल सेक्टर. तो इनफॉर्मल सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा जो जीडीपी को कंट्रीब्यूशन मिलता है, बट इनफॉर्मल सेक्टर के अपने नुकसान भी हैं. दैट वी विल डिस्कस आफ्टर सम टाइम. देन इज कैजुअलाइजेशन. तो कैजुअलाइजेशन में क्या है? इट इज द फिनोमिनन ऑफ शिफ्ट फ्रॉम रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू casual wage work. It has gradually increased over the last few decades. तो casualization मतलब it is a shift from regular salaried employment और self employment. मतलब regular एक job से casual wage work की तरफ जो ये shift है that is known as casualization. तो casual wage work जो है for example जो daily wage workers हैं वो ज़्यादा बढ़ रहा है. It has gradually increased over the past few decades. Then is masculinization. So India's female labor force participation rate was around 41%, which was according to the PLFS 2023-24. तो उसमें कहा गया है कि female labor force participation rate is around 41%, which is still less than men. So it had fallen to 23.3% in 2017 to 18. So 2017-18 में ये 23.3% तक गिर गया था. बट अभी PLFS का जो लेटेस्ट डाटा है उसके अकॉर्डिंगली इट इज 41% नाउ. द नेक्स्ट फीचर इज जॉबलेस ग्रोथ. It is an economic phenomenon in which a macro economy experiences growth while maintaining or decreasing its level of employment. मतलब जॉबलेस ग्रोथ क्या है? एक ऐसा इकोनॉमिक फिनोमिनन है जिसमें एक मैक्रो इकोनॉमी जो है उसमें तो ग्रोथ हो रही है, बट जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसका वो या तो उतना ही है या कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है. सो दिस इज रेफर टू एज द सिनेरियो ऑफ जॉबलेस ग्रोथ. इट हैज़ बीन विटनेस्ड आफ्टर द 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स. तो एलपीजी रिफॉर्म्स का अलग चैप्टर है, वो हम लोग अलग पढ़ेंगे, और जॉबलेस ग्रोथ भी हम लोग इस टॉपिक को अलग से पढ़ेंगे. इन इंडिया underemployment and disguised unemployment they are the major concerns which create supply side constraints in the economy. तो इंडिया के मेन जो concerns हैं वो है underemployment and disguised unemployment. Because of the lack of capital, India has not been able to effectively meet the needs of the growing labor force. तो बिकॉज इंडिया में कैपिटल की कमी की वजह से इंडिया जो है वो अपने ग्रोइंग लेबर फोर्स की नीड्स को इफेक्टिवली
फुलफिल नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, prevalence of large scale unemployment in urban areas and increased engagement in agriculture despite it being disguised unemployment। तो disguised unemployment होने के बाद भी एग्रीकल्चर में जो लोग हैं वो ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं। उसका उसकी जो रीज़न है वो हमने अभी पढ़ा ही था कि एग्रीकल्चर जो है वो एक तरह का उनके पास लास्ट रिज़ॉर्ट है, बिकॉज़ जो सेकेंडरी सेक्टर है वो उन्हें अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पा रहा और टर्शियरी सेक्टर की स्किल्स उनके पास है नहीं। तो उनके पास बचता ही है सिर्फ़ प्राइमरी सेक्टर, दैट इज़ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होने के बाद भी लोग ज़्यादा एम्प्लॉय हो रहे हैं, बिकॉज़ और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। और जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, बिकॉज़ लोग वहाँ पे बढ़ते ही जा रहे हैं और अपॉर्च्युनिटीज़ जॉब की जो हैं वो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही हैं प्रोपोर्शनेटली। नाउ व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड इसके लिए? द नीड इज़ फॉर फास्टर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन इज़ बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करना, दैट इज़ हेल्थ में, एजुकेशन में, स्किल्स में, so that the employment opportunities can be increased. Next is the government should encourage savings. तो savings are the main driver of Indian economy. तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सेविंग्स को encourage करे, हाउस होल्ड सेविंग्स को, एंड their productive utilization in increasing the rate of investment. तो जो सेविंग्स लोग अपनी डोमेस्टिक सेविंग्स है उनको लोग बैंक में डिपॉजिट करेंगे, बैंक आगे लोन देगा और लोन से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगी इंडिया में। सो सेविंग्स इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। उसके बाद क्या है, ऑल्सो द गवर्नमेंट नीड्स टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो देर इज़ अ नीड कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में बढ़े, सो दैट वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी ज़रूरी है ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके, लोगों को जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट मिल सके। सो दिस इज़ द वे फॉरवर्ड।